Here. Okay, let me start it. I have opened the. Okay, yes, now I'm able to see you. So male component of pyre abutment is placed on the mesial side of distal pontic, the distal side of mesial pontic, the mesial side of mesial pontic abutment. Okay, let me start it. The distal side of abutment. So the answer here is the mesial side of distal pontic. Now I'll just open my notepad and will tell you how is it. Okay, so when we are talking about pyre abutment, we know that pyre abutment is an abutment that is being surrounded on both the sides by edentulous area. If there is one more abutment here, for example, and like this, so if we are giving a 5-unit bridge, so such a case, in the pyre abutment case, there is a lot of forces on the distal aspect of pyre abutment. So earlier when rigid connectors were given, so there was a lot of bone loss on the distal aspect of the pyre abutment. So that is why it was indicated that on the distal aspect, let us break the forces, let us give a stress breaker in form of non-rigid connector. So when the non-rigid connector was given, so there is an anterior FPD. Now this is a mesial pontic. We have to use a surveyor, other questions, and this is a second 2-unit FPD, posterior FPD, and this is a distal pontic. Now we have to give the non-rigid connection in form of key or keyway here. So what we have to do is write down that the male portion or the key we have to place on the mesial aspect of the distal pontic, and the keyway has to be placed on the distal aspect of the pontic, So here the clear-cut answer here is a mesial aspect of distal pontic. I hope it is clear. Mind you, we cannot change it. If we will change it, then there will be a lot of problems. Then we will see. Okay. The first question, I hope it is clear. Any doubts? Students, any doubts? Any doubts? So we have to give a non-rigid connector in such cases. Second is the posterior tooth that gives the better support for FPD abutment is tooth with congruent roots, tooth with divergent roots, tooth with conical roots, and tooth with curved roots. Okay, so here I can with congruent roots I can rule out. With conical roots, yes, it's a bad abutment. तो divergent और हमारा curved root में कहीं ना कहीं एक problem आएगी, right? Nikesh, so the best answer here is divergent roots. Why? Because the roots that are more divergent, okay, that will have more pericymmental area. Okay, so an ideal abutment is an abutment which is having a crown root ratio. There are 3 crown root ratio that you need to remember. One is the ideal is 1:2. Write down ideal is 1:2. Then second is your optimal or recommended, that is 2:3, and minimal is 1:1. Less than this is not an indication for FPD, right? Less than 1:1 crown root ratio is not an indication for FPD. Okay, you have to go for other options. Second, Anti's law states that Anti's law was given by Irwin H. Ente. It was given by Irwin H. Ente.
तो एंटीज लॉ स्टेट दैट वी ऑल नो दैट कि जो भी हमारा अबटमेंट है उनका पेरिसीमेंटल एरिया शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन द टूथ यू आर रिप्लेसिंग. ओके, सो द अबटमेंट the abutment that we are taking, okay, should have good ground root ratio, no caries, no fracture, and roots it should be divergent. More divergent the roots, more will be the pericemental area. One more important point that I have always told you, that these aims now, because this NBEM is going to conduct the exam, write down, many times it has asked that abutments whose roots, abutments, एक second, I'll just, abutments whose root are they are wider facial-lingually than mesiodistally are better abutments. Roots that are more wider facial-lingually than mesiodistally, these are better abutments. I hope clear है. Any doubts बेटा? कोई डाउट है? गुड इवनिंग शालिनी आनंद, गुड इवनिंग निकेश महेश्वरी, आई वेलकम यू ऑल. बेटा और जो हैं प्लीज़ अपना नाम लिख के भेजिए. ओके, ग्रेट, समझ में आया बेटा? तो याद रखो आइडियल अबटमेंट, देखो जब भी, और एक चीज़ बताया, तो जब भी कभी आइडियल अबटमेंट के बारे में आपसे पूछते हैं तो आपको इट शुड बी ए क्लियर कट आंसर, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, राइट? The periodontium remains healthy when the crown margins are placed at the gingival crest, above the gingival margin, about half mm apical to gingival crest, about 1 mm apical to gingival crest. देखो हमेशा याद रखो, whenever possible, always and always give your crown margins supragingival until or unless subgingival marginal indication is there. ओके, तो सबजिंजाइवल, हमें नॉन एस्थेटिक जोन कर रहे हो, क्राउन की हमारी वो अच्छी है, लेंथ अच्छी है, तो व्हाई नॉट सुप्राजिंजाइवल? ऑलवेज गिव सुप्राजिंजाइवल मार्जिन बिकॉज ऑफ इट्स. नहीं निकेश, ऐसे नहीं बोल सकते कि मैक्सिलरी टीथ आर बेटर अबटमेंट्स. ठीक है, हम बेटा मोर फेशियोलिंगुअली वाइड मैंडिबुलर टीथ होते हैं बेटा. आप अगर वो देखोगे ऐसे, सोगे, तो ऐसे नहीं बोल सकते कि मैक्सिलरी टीथ आर बेटर. बट येस, अगर आप मैक्सिलरी टीथ को देखोगे तो एक्चुअली में मैंडिबुलर मोलर्स की जो रूट्स हैं वो फेशियोलिंगुअली होती हैं. देखो जो आपकी जो बक्कोलिंगुअल डायमेंशन है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू मेसियोडिस्टल डायमेंशन. ठीक है, तो उसमें रूट्स से हम ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते. बट येस, when we are given FPD तो हम दो अबटमेंट्स को कंपेयर करते हैं. we cannot compare two arches, right? okay, we can compare two abutments but not two arches, like this, right? So here the best answer is answer number 3 is above gingival margin. I'll just give a brush up. See, always give the supragingival margin in the crown wherever indicated, okay, because the patient can clean it, the technician can observe it and can finish the crowns over it, and the patient can maintain it, and the even dentist can inspect it later. Impression में वो आपको retraction करने की ज़रूरत नहीं है आपको, you don't have to retract it. तो patient can clean it, maintain it, caries के chances कम होते हैं. ठीक है, तो these are all the advantages of a supragingival margin. But yes, there are conditions or there are indications when subgingival margins need to be given. जैसे for example aesthetic area, you need to go 0.5 mm above the inside the gingival margin, and you have to hide the margins of the crown in aesthetic area. Second, if there is root sensitivity, if there are subgingival caries, okay, got it? Or if you have to
if there is a short clinical crown, so to gain that extra 0.5 to 1 mm, you can go subgingival depending upon the height of the crown. So I hope things are clear. So answer number 3 का best answer is B. Ideal dimension और ideal dimension of a luting space is, बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, बट देखो इसमें मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला है कि अगर मान लो आपका एक कोट आता है क्वेश्चन में, यहाँ पे तो आंसर बी है 2240 माइक्रोन्स, बट ल्यूटिंग जो हम देखो जितना हम डाई स्पेसर लगाते हैं, देखो हमने आपके पास डाई आ गई, ठीक है, डाई के बाद जब आपने डाई प्रिपरेशन कर ली, then you have to place a die spacer. Die spacer is placed over the tooth. I'll just draw. तो अगर आपको ये डाई स्पेसर, आपके पास डाई आ गई, तो इफ दिस इज द डाई एंड दिस इज द मार्जिन, फॉर एग्जांपल ये मार्जिन है, ओके, तो रिमेंबर वन थिंग इज दैट कि जब भी हम डाई स्पेसर लगाते हैं, तो अगर हम सिंगल कोट लगाते हैं, अगर क्वेश्चन आता है सिंगल कोट ऑफ डाई स्पेसर, सिंगल कोट ऑफ डाई स्पेसर जब हम लगाते हैं तो दैट इज 10 माइक्रोन्स, नॉर्मली 10 to 20 माइक्रोन्स. 2 कोट लगाते हैं नॉर्मली हम, वो गिरता है हमारा 20 से 40 माइक्रोन्स, right? And it should always be placed 0.5 mm short of gingival margin. That creates, अब इसके ऊपर हम वो लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं हम gingival separator और separating area, and then we go for the wax pattern fabrication. When we are going for wax pattern fabrication, over it automatically creates that luting cement space. Okay, तो remember this, that अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिंगल कोट 10 to 20 माइक्रोन्स, डबल कोट नॉर्मली, बट नॉर्मली जितने भी हमारे सीमेंट्स होते हैं वो हमारे 20 से 40. एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट बेटा मुझे याद आता है कि अगर रेजिन डाइस के बारे में पूछा जाता है या साइनो एक्रिलेट्स डाइस के बारे में पूछा जाता है, रेजिन डाइस में प्रॉब्लम क्या होती है, रेजिन डाइस में देयर आर प्रॉब्लम ऑफ टाइट कास्टिंग्स. लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइट कास्टिंग्स. कास्टिंग छोटी आएगी, क्यों? क्योंकि जब डाई बनती है, आपने देखो यू हैव मेड द इंप्रेशन, मान लो इंप्रेशन में इतना बड़ा था नेगेटिव रेप्लिका, लेकिन जब आपने इसके ऊपर डाई पोर करी, आपने रेजिन डाइस पोर करी, तो वो देयर इज अ पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, तो वो छोटा बन जाती है. अब क्राउन इतना बड़ा था, समझना, क्राउन इतना बड़ा था, इतना वाइड था मान लो, है ना, और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर डाई हमारी छोटी होगी, तो आपका क्राउन तो इसमें बनेगा, है ना, तो आपकी क्राउन की डायमेंशन तो यही रहेगी. अब आप ये क्राउन इस पे फिट करने की कोशिश करोगे तो या तो आएगा नहीं या बहुत ही टाइट आएगा. तो क्वेश्चन क्या आता है कि रेजिन डाइज जो होती हैं, रेजिनस डाइज जो होती हैं, उन पे जो क्राउन बनते हैं बिकॉज ऑफ पॉलीमराइजेशन के, दे आर टू टाइट कास्टिंग्स. ये लिख लो, बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार. ठीक है, वैक्स एडिशन फॉर वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन इन एफपीडी. ठीक है, वैक्स पैटर्न फैब्रिकेशन इन एफपीडी इज डन बाय PKT2, PK थॉमस. ये हमारा ओके, ये हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, देयर इज अ सेट ऑफ 5 इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, राइट. तो इसमें जो PKT1 जो होता है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा, जैसे PKT1 होता है नॉर्मली, PKT1 इज़ फॉर माइनर वैक्स एडिशन. बट अगर आपसे पूछा जाता है कि वैक्स एडिशन मेनली आपका कौन करता है, तो वैक्स एडिशन मेनली आपका जो करता है वो आपका PKT2 करता है, बिकॉज इट इज़ मोर वाइडर, बिकॉज इट इज़ मोर वाइडर.
ठीक है, जो PKT1 होता है उसकी जो टिप होती है वो काफ़ी टेपर्ड होती है। PKT2 की जो टिप होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है। ठीक है, तो अगर आपका इंस्ट्रूमेंट अगर आपका पतला है तो वो है PKT1, और थोड़ा सा वाइडर है तो वो हो जाएगा हमारा PKT2। गॉट इट? ठीक है, PKT3 भी हमारा वैक्स एडिशन का है। 4-5 हमारा नॉर्मली हमारा इट इज फॉर कार्विंग दी फोसा, एंड देन लास्ट देयर इज अ ब्लेड, ओके, वेयर यू कैन कार्व दी वैक्स पैटर्न्स। ओके, तो मेनली जो हमारा जो द PKT2 जो सेट है हमारा, इट इज मेनली फॉर द बल्क एडिशन ऑफ द वैक्स। मिनिमम इंटरऑक्लूजल स्पेस required for cement retained crowns for implant is, बेटा मिनिमम इज 5 mm। देखो, जो हमारा इम्प्लांट के लिए जो क्राउन्स आते हैं, राइट, जो क्राउन्स हम यूज करते हैं, दो तरीके के क्राउन्स आते हैं मेनली, है ना, 3 तरीके के हैं मेनली वैसे। वन इज योर सीमेंट रिटेन्ड, one is your SCR screw cement retained, and third is your screw retained। ये जो सीमेंट रिटेन्ड होते हैं, सीमेंट रिटेन्ड जस्ट लाइक योर FPD, वेयर एक्चुअली में आपका इम्प्लांट इज इन द बोन, इट इज ऑस्टियो इंटीग्रेटेड एंड यू चूज द अबटमेंट। लेकिन जैसे हम FPD के प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, अबटमेंट की हाइट, ठीक है, मिनिमम ये जो स्पेस आपको मिनिमम 3 से 4 mm का तो अबटमेंट चाहिए, और आपको उसके ऊपर स्पेस भी चाहिए कम से कम 1.5 से 2 mm की। ठीक है, तो कम से कम आपको जो सीमेंट रिटेन क्राउन के लिए चाहिए वो चाहिए मिनिमम 5 mm ऑफ इंटरऑक्लूजल स्पेस बिटवीन द अपोजिंग आर्चेज। अगर इससे कम है देन यू हैव टू गो विद द आइदर विद द स्क्रू सीमेंट रिटेन्ड और स्क्रू रिटेन्ड रेस्टोरेशंस। लिख लो, है ना। इसमें यहाँ पे एक और चीज़ है बेटा, सीमेंट रिटेन्ड में एक प्रॉब्लम होती है। सीमेंट रिटेन्ड में द मेजर प्रॉब्लम इज रिट्रीवेबिलिटी। अगर अंदर से हमारा जो स्क्रू है, अबटमेंट स्क्रू है, वो लूज हुआ तो आप इसे रिट्रीव करना बहुत मुश्किल होता है। देन यू हैव टू सेक्रीफाइस दी प्रोसेसेस एंड देन अबटमेंट भी डैमेज हो सकता है निकालते हुए। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हमारा जो स्क्रू रिटेन का सबसे बड़ी एडवांटेज है कि अगर आपका रिट्रीवेबिलिटी, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप यू कैन जस्ट रिमूव दी टेफ्लॉन टेप फ्रॉम दी एक्सेस होल, यू कैन रिमूव द फिलिंग वॉट एवर यू हैव डन इट, यू कैन जस्ट विद योर हेक्स इंस्ट्रूमेंट यू कैन एंगेज द स्क्रू, रिट्रीव इट, और यू कैन टाइटन इट इफ यू वांट। और कोई दिक्कत है तो आप इसे निकाल सकते हो। इवन जो ऑल ऑन 4 की प्रोसेसेस होती है या हमारे हाइब्रिड जो हमारी प्रोसेसेस होती हैं, उसके स्क्रू चेंज करने हो या फिर उसके नीचे खाना फंस रहा हो तो 2-3 साल के बाद यू कैन जस्ट रिमूव द प्रोसेसेस, कैन क्लीन इट एंड अगेन पुट इट बैक। तो स्क्रू रिटेन प्रोसेसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज यही होता है कि रिट्रीवेबिलिटी। 2-3 साल के बाद अगर आपकी प्रोसेसेस अगर आपको साफ़ करनी है उसमें से निकाल के तो कर सकते हो, जो कि सीमेंट रिटेन में नहीं है। एक बार सीमेंट रिटेन हो गया तो देन यू हैव टू एक्चुअली there will be a problem of retrievability. Screw retain, again I am saying screw retain में advantage मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। you have to be careful, okay, so this is advantageous. Okay, there is one more question on the key and keyway. As I told that if the keyway of the non-rigid connector is placed on the distal side of the pyre abutment, occlusal forces will, this is an important question,
will seat the key into the keyway, will unseat the key from the keyway, will have no effect, and effect will be variable. Now, as I told you in my previous question, कि हमारा अगर ये हमारा 5 यूनिट का सी इफ यू हैव गिवन अ, ये हमारा 3 यूनिट का एंटीरियर एफपीडी होगा जो बताया था मैंने, आई टोल्ड, ये तो बताया था मैंने कि अगर ये हमारा ये हमारा की वे है या की है on the distal aspect of the pyre abutment, and I told that this is the anterior FPD for non-rigid connection, and I told that ये हमारा जो distal pontic का mesial aspect है, here I'll attach the key, and ये हमारा 2 यूनिट का FPD अलग है. This is what is the pyre abutment as I told you, key and keyway. तो यही तो पूछ रहे हैं कि अगर हमारा की mesial side of pyre abutment है या फिर हमारी जो कीवे है वो हमारा डिस्टल साइड में है, तो डेफिनेटली इट विल हैव अ लॉकिंग इफेक्ट, इट विल हैव अ सीटिंग इफेक्ट, इट विल हैव अ सीटिंग इफेक्ट. तो अगर हमारा ये उल्टा कर दोगे तो याद रखना इट विल हैव अ अनसीटिंग इफेक्ट, रिमेंबर दिस. तो if the question would have been if the keyway of the non-rigid connection is placed on the mesial side of pyre abutment या फिर mesial side of the distal pontic or the or middle side of distal definitely pontic, then it will have an unseating effect. तो आंसर यहाँ पे ये सही है, आंसर will be it will seat the key into the keyway. It is right. A. Pattern of mandibular movement of complete denture patients as compared to those with the natural teeth. बेटा जब दांत नहीं होते पेशेंट के तो उनका जो रिफ्लेक्स होता है, the reflex, the proprioception is gone. तो डेफिनेटली जो मैंडिबुलर मूवमेंट जो सीडी पेशेंट की होती है और जो हम एक उससे करते हैं, तो इट इज़ डेफिनेटली ऑल्टर्ड. देखो 100% कम्प्लीटली डिफरेंट नहीं हो सकती है क्योंकि डेफिनेटली वो च्यूइंग साइकिल और सेंट्रिक रिलेशन तो रहता है, बट हेयर द बेस्ट आंसर इज आई विल जस्ट रिपीट द चॉइसेस. Okay, so right, so the answer here is mandibular movement is altered in complete denture patient because of the neuromuscular control is maybe it is gone, because of the poor because the vertical dimension is lost and the proprioception is lost. So the best answer here is the mandibular movement is altered in complete denture patients. 9th is an easy question. बेटा ये हर बार कई बार आप गलत भी करते हो. The FNV sounds are the labiodental sound. Labiodental sound का क्या मतलब है? जब हमारे दांत हमारे लिप्स को मतलब वो करते हैं, हमारे टच करते हैं बोलते हुए, तो F and V आर मेनली दी लेबियोडेंटल साउंड्स. F तो जब भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये हमारे जो अपर इंसाइजर्स हैं वेयर इट विल टच ऑन दी लोअर टीथ, राइट, ऑन दी लोअर लिप. सो देर इज अ द वर्मिलियन बॉर्डर. जब हम बोलते हैं F तो इट इज़ मोर लेबियल कॉन्टैक्ट, तो ऑन द वर्मिलियन बॉर्डर, और वर्मिलियन बॉर्डर से और लिंगुअल पोस्टीरियर 1/3 की तरफ V निकलता है, V, F, V. तो ये पूछ सकते हैं द कॉन्टैक्ट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. सो हेयर द लेबियोडेंटल साउंड्स आर F and V. बेटा एक क्वेश्चन आता है जो आप हमेशा गलत करते हो. आई एम अगेन, बेटा मैंने आसान क्वेश्चन इसलिए डाल रखे हैं ताकि जो इनके जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं जो आते हैं मेरे को याद रहे और मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है. तो जस्ट नोट सच वन मोर क्वेश्चन इज दैट के अगर हमारा फेशियोलिंगुअल ओरिएंटेशन ऑफ द एंटीरियर्स, if the faciolingual orientation or the buccolingual orientation of the upper anteriors is wrong, अगर वो गलत है तो मेनली हमारी S साउंड अफेक्ट होती है. होती सारी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा S साउंड अफेक्ट होती है. लिख लीजिए, ठीक है,
लिख लीजिए, एस साउंड इज मेनली अफेक्टेड बाय द रॉन्ग फेशियोलिंगुअल ओरिएंटेशन ऑफ द अपर एंटीरियर्स। क्लियर है? ये लिख लो, यही आंसर है, उल्टा मत करके आना। होते सारे हैं, ऐसा नहीं है, एफएनबी भी इफेक्ट होते हैं, सुपीरियर इन्फीरियर से भी इफेक्ट होते हैं, इससे भी इफेक्ट होते हैं, बट अगर कभी क्वेश्चन आए, अगर 4 चॉइस दे रखी हो तो आंसर इज एस साउंड, राइट। एपेक्स ऑफ बोनवेल्स ट्राइंगल is located at the bisection of the vertical lip of upper and lower anteriors, bisection of the point of line joining two condylar heads, at the contact point between the mandibular central incisors, at the bisection of the intercanine line of the maxillary yard. The answer here is at the contact point between the mandibular central incisor. So we all know that the Bonville equilateral triangle theory, what it states कि भाई कि हमारा अगर दो कॉन्डाइल से लेके और मिड इंसाइजल पॉइंट ऑफ लोअर इंसाइजर्स पे अगर हम कांटेक्ट करें तो 3 लाइन बनती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, विद जो हमारी साइड्स हैं वो 4 इंच ईच इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है हमारा पूरा, ठीक है। एंड सो द आंसर इज Bonville ट्राइंगल के जो इंटरसेक्शन है दैट इज एट द midline of the mandibular incisors, ठीक। अदर थ्योरी भी होती हैं बेटा, ये थी Bonville's equilateral triangle थ्योरी। अदर थ्योरी थी, 2 और थ्योरी थी, नॉर्मली इस पे क्वेश्चन नहीं आते हैं बट स्टिल मतलब ये पूछ सकते हैं, ठीक है ना। इन CD द सेपरेशन ऑफ द पोस्टीरियर टीथ कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। मतलब देखो, अगर मैं बैलेंस में, सो द चॉइसेस आर इंक्रीजिंग द स्टीपनेस ऑफ द कॉम्पनसेटरी कर्व्स, increasing the steepness of the compensatory curves, increasing the incisal guidance, using teeth with less cuspal inclines and increasing the condylar angle. तो बेटा यहाँ पे see the main ओके सो बेटा मैं आपको आई एम जस्ट बिकॉज इज ऑल्सो रिविजन सीरीज, सो आई जस्ट टेल यू टू मिनट्स सो दैट नो बडी इज कन्फ्यूज। एंड देखो एक चीज़ याद रखना कि हमारा जो बैलेंस का क्या मतलब है, बैलेंस ऑक्लूजन का मतलब है कि कोई भी हमारी कि अगर मान लो बैलेंस में 3-4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके आगे कुछ नहीं आएगा, ठीक है। ये हमारी एंटीरियर गाइडेंस है, ये इंसाइजल गाइडेंस है, पीछे हमारी दिस इज एंटीरियर कंट्रोलिंग फैक्टर, और पीछे हमारा पोस्टीरियर कंट्रोलिंग फैक्टर है हमारा कॉन्डाइलर गाइडेंस, ओके। मतलब हाउ इट ट्रेवर्सेस थ्रू दी गिनोइड फोसा, द एंगल दैट इट फॉर्म्स, ओके। और बीच में हमारे आगे दांत पोस्टीरियर्स, ठीक है बेटा। याद रखो बैलेंस का मतलब है, बैलेंस ऑक्लूजन का मतलब है कॉन्टैक्ट बिटवीन द पोस्टीरियर्स एंड द एंटीरियर्स, कॉन्टैक्ट होना चाहिए इन द डेंचर, बट वी ऑल नो बिकॉज ऑफ द क्रिस्टेंसन फिनोमेना, ओके। जब आप नेचुरल टीथ को साथ बिल्कुल एज टू एज लेके जाते हो तो पोस्टीरियर टीथ क्या हो जाते हैं, डिसऑक्लूड, ओके। ये फिनोमेना इसमें भी होगा। तो इसका मतलब ये है कि याद रखना कि जो बैलेंस के 2 दुश्मन होते हैं, 2 एनिमीज होते हैं। 1 एनिमी इज योर एंटीरियर गाइडेंस विच इज अ ग्रेटर एनिमी देन कॉन्डाइलर गाइडेंस, रिमेंबर दिस। क्वेश्चन आपसे पूछते हैं बिकॉज इट इज एट द लेवल ऑफ द टीथ, एंटीरियर गाइडेंस प्रोड्यूसेस मोर डिस्क्लूजन देन कॉन्डाइलर गाइडेंस, तो ये दोनों दुश्मन है। तो अगर ये मैं एक साथ खड़े कर दूं, एंटीरियर गाइडेंस और कॉन्डाइलर गाइडेंस ये कर दूं, तो अब मुझे दांत, लेकिन बैलेंस में मुझे दांत आपस में लेके आने, तो अगर मुझे आपस में लेने आते हैं तो इसीलिए मैं क्या करता हूं कि मैं आइदर कॉम्पनसेटरी कर्व्स को क्या कर दूंगा, स्टीप कर दूंगा या एग्जैजरेट कर दूंगा, तभी मेरा कर्व स्पी, कर्व विल्सन, कर्व मॉनसून मुझे वो करने पड़ते हैं, एग्जैजरेट करने पड़ते हैं। कस्पल इंक्लाइंस को बढ़ाना पड़ता है, हाइट को बढ़ाना पड़ता है, प्लेन ऑफ ऑक्लूजन को ऑल्टर करना पड़ता है 10 से 20 डिग्री। तो ये मेरे दूसरे फैक्टर्स हैं जो इनको
काउंटरैक्ट करते हैं कौन से? कॉम्पनसेटरी कर्व्स, कस्पल एंगुलेशन एंड हाइट एंड प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन। तो ये दोनों दुश्मन है, ये एनिमी है, दैट क्रिएट्स डिसऑक्लूजन, ये कॉन्टेक्ट लाते हैं। तो दीज आर दी फ्रेंड्स ऑफ बैलेंस्ड ऑक्लूजन। याद रखो कि एंटीरियर गाइडेंस आपके हाथ में, इट इज अंडर डेंटिस्ट कंट्रोल बिकॉज इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द ओवर जेट एंड ओवर बाइट। कॉन्डाइलर गाइडेंस इज नॉट अंडर डेंटिस्ट कंट्रोल, वो जो है वो रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है 2 पेशेंट हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लो 2 पेशेंट हैं, कॉन्डाइलर गाइडेंस आप एक तो प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट से लेते हैं। ये एक और क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कॉन्डाइलर गाइडेंस, हाउ इज कॉन्डाइलर गाइडेंस रिकॉर्डेड? बाय द प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड, बायलैटरल, जो हमारा बायलैटरल कॉन्डाइलर गाइडेंस है, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड बाय द पेशेंट्स प्रोट्रूसिव रिकॉर्ड। ठीक, पहली चीज़। अगर मान लो आपके क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट की कॉन्डाइलर गाइडेंस 20 है, दूसरे पेशेंट की कॉन्डाइलर गाइडेंस 30 है, तो किसमें बैलेंस लाना आसान होगा? जिसमें कॉन्डाइलर गाइडेंस की वैल्यू कम है, बिकॉज ये दुश्मन है उसका। तो अब एंटीरियर गाइडेंस डेफिनेटली आपके हाथ में, ओवर जेट ओवर बाइट। So what you have to do, you have to, the anterior guidance have to be kept as less as possible, almost zero, nil. So overjet overbite, you have to keep it very minimal, almost an open bite. Baki, if still disocclusion will come because you are giving some amount of anterior guidance, corneal guidance is still acting, so you have to compensate by giving compensatory curves, cuspal height and angulation and plane of orientation. Got it? Clear? So here the best answer is A, increasing the steepness or exaggerating the compensatory curves. Articulation that uses plaster indices to mount the master cast. So it is a very old question. I am just giving you a mixed bag कि अगर कोई ओल्ड एग्जामिनर कोई क्वेश्चन डाल देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, डाल सकते हैं। तो जो प्लास्टर इंडिसेस सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट थी, इट इज़ अ स्लैब आर्टिकुलेटर। ठीक है, इट इज़ अ वेरी वेरी प्रिमिटिव आर्टिकुलेटर। इसमें और देयर वाज नो फेस बो। रिमेंबर, इफ़ यू सी द क्लासिफिकेशन ऑफ articulators of type 1, type 2, type 3, type 4, remember that face bow came only in type 3 and in type 4. Type 1, type 2 there were no face bows. In type 1 there was only vertical movement possible, no horizontal movement possible, and they were only plaster indices, just vertically they were matched. So here the answer is slab articulator, right? Bennett shift is Bennett shift is the lateral shift of the working side condyle. Okay, working side better is the working side of the mandible. Now Bennett shift क्या होती है? Bennett shift होती है कि मान लीजिए if I am taking my mandible towards the right, if I am taking my mandible towards the right, तो right side of the mandible becomes the working side and the left side becomes the non-working side, and on the condylar aspect also this side becomes the non-working side and this side becomes the working side. Okay, तो जो Bennett shift है, it is the whole shift of the mandible, base of the mandible towards the working side. So the answer here is C, that is your direct lateral shift of the working side of the mandible. Okay, remember this बेटा। एक चीज़ और याद रखना कि जितने भी एंगल्स होते हैं Bennett angle is the angle between the, write down, it is the angle between the non-working side condylar path and the sagittal plane. It is normally 15 degrees. Okay, the Bennett angle. Remember, Bennett angle हो, Fisher angle हो, they are always made, और जितनी भी shifts हैं 3, precurrent side shift, progressive side shift and immediate side shift, ये तीनों जो shifts हैं ये हमारी नॉन वर्किंग साइड कॉन्डाइल पे होती हैं। तीनों shifts, दोनों एंगल हमारे नॉन वर्किंग साइड कॉन्डाइल पे बनते हैं। लिख लो इसको बहुत अच्छे से, रिमेंबर दिस। ओके, ठीक है।
तो जस्ट आई विल जस्ट टेल यू कि प्रिकरेंट साइड शिफ्ट और वो क्या होती है, ताकि आप गलत ना करें बेटा, आपकी किताबों में बहुत गलत दे रखा है जस्ट। ठीक है, देखो नॉन वर्किंग साइड कॉन्डाइल पे होता है तो एक चीज़ याद रखना, अगर हमारा जो नॉन वर्किंग साइड कॉन्डाइल होता है, अगर मान लो ये मीडियल एस्पेक्ट है, ये टुवर्ड्स द मिड लाइन है, तो इट गोज डायरेक्ट DFM, डायरेक्ट डाउनवर्ड फॉरवर्ड एंड मीडियली, इट इज गोइंग लाइक दिस, डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियली। कितना और कब मीडियली मूव करता है डायरेक्ट डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट में, दैट डिसाइड्स द शिफ्ट। ओके, तो देर आर 3 शिफ्ट्स, वन इज प्रिकरेंट साइड शिफ्ट, वन इज प्रोग्रेसिव साइड शिफ्ट, and another is your immediate side shift. The precurrent side shift is the, remember precurrent side shift is the कि अगर 2 से 4 इनिशियल मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल में उसने मैक्सिमम शिफ्ट मीडियल मूवमेंट दिखा दी, राइट डाउन विदिन फ्यू मिलीमीटर्स, within few millimeters of the downward and forward movement of the non-working side condyle, if it shifts maximum to the if it shows maximum medial movement within the initial downward and forward movements को कहते हैं precurrent side shift. Normally 75% of the shift हो जाती है precurrent side shift में, उसके बाद जो 25% रह जाती है that is known as progressive side shift. ठीक है, फिर तो वो जो लास्ट तक जो करेगा रेस्ट 25% हमारी प्रोग्रेसिव साइड शिफ्ट में आ जाती है। गॉट इट? तो प्रिकरेंट साइड शिफ्ट इज द इनिशियल शिफ्ट के मान लो पहले ही वो अगर मान लो आपका 10 mm मूव करना था तो 10 mm का 75% वो पहले ही मूव कर गया इनिशियल डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मूवमेंट, उसके बाद जो ठीक है उसका जो प्रोग्रेस कर रहा है प्रोग्रेसिव साइड शिफ्ट। इमीडिएट साइड शिफ्ट में क्या होता है, इमीडिएट साइड शिफ्ट में क्या होता है, राइट बेटा ये बहुत कंफ्यूजन है तुमको, जो मान लो ये कॉन्डाइल है, सो इमीडिएट साइड शिफ्ट में विदाउट, रिमेंबर दिस, विदाउट एनी डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, नीचे मूव नहीं किया, डाउन मूव नहीं किया, इट डायरेक्टली शोड द मीडियल शिफ्ट, सारा कंप्लीटली जितनी थी वो पहले ही मूव कर गया विदाउट डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट, उसको बोलते हैं इमीडिएट साइड शिफ्ट। क्लियर? क्लियर है? तो जस्ट मैं बता रहा हूँ, यू शुड बी केयरफुल व्हेन यू आर आंसरिंग सच क्वेश्चंस। तो आंसर हियर इज सी, आई हैव टोल्ड यू द ऑल द शिफ्ट्स। Advantage of U-shaped palatal strap, is it rigid? No. Does it provide too much support? No. Is it that much stable? No. तो there is no advantage. एक और क्वेश्चन आता है U-shaped palatal strap पे कि U-shaped maxillary जो palatal हमारा जो स्ट्रैप है, the U-shaped पैलेटल स्ट्रैप, ओपन यू शेप पैलेटल स्ट्रैप जो है हमारा, आई जस्ट टेल यू, so it is a U-shaped maxillary palatal open horseshoe shaped. Remember that there is a problem, the problem is rigidity, it is absolutely not rigid. ठीक है, दूसरा there is a problem of lateral flexing, it is it is only indicated whenever there is a large tori from hard palate to the extent of the soft palate, उसको accommodate करने के लिए। and there are various question that yes class 4 Kennedys में use कर सकते हो, it is contraindicated in distal extension cases, it is contraindicated in distal extension cases. Why? Because it can show lateral flexing and can show problems because it is not rigid. ठीक है, okay, and there is one more question that it derives indirect retention, it derives indirect retention from the rugae area. ठीक है, it derives indirect retention from the rugae area. ठीक है, और इट ड्राइव सपोर्ट फ्रॉम द रूगे एरिया। ठीक है, यहाँ पे काम करो, सपोर्ट रहने दो, अगर सपोर्ट है तो आंसर सपोर्ट हो जाएगा, यहाँ पे रिटेंशन कर लो। क्वेश्चन आई एक्चुअली चेंज, ये सेव नहीं हुआ। ओके,
तो रिजिडिटी नहीं है, स्टेबल इतना नहीं है, रिटेंटिव इतना, देयर इज नो, ठीक है। तो इट डिराइव सपोर्ट फ्रॉम द रूगे एरिया, रिमेंबर दिस, ठीक है। तो एंटीरियर रूगे और एंटीरियर पोर्शन ऑफ प्री मैक्सिला से सपोर्ट ड्राइव करता है, तो एडवांटेज इज नन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज remargination in wax pattern is done to, remargination in wax pattern is done to increase the structural durability, never to be done, for marginal adaptation and indirectly reducing the cement dissolution rate or increasing the retention form. It is a very good question that I have framed. रीमार्जिनेशन का मतलब है कि भाई के आपका जो बिल्कुल मार्जिन वाला वैक्स, आपने वैक्स पैटर्न बना दिया, सो व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज देर आर lot of discrepancies in the margin, so what you do, 0.5 to 1 mm of that area of the wax is removed, okay, and to recreate the seal we use a harder red wax or remargination wax, so that we have a better marginal adaptation of the crowns in the wax pattern, and indirectly अगर हमारी margins open नहीं होंगी तो हमारा सीमेंट में डिसोल्यूशन नहीं होगा। तो रीमार्जिनेशन इन वैक्स पैटर्न इज डन टू फॉर बेटर मार्जिनल अडेप्टेशन। हम एक बार अपना जो पीकेटी का सेट है, हम उस पर रेड वैक्स से दोबारा से मार्जिन पे वैक्स लगाते हैं ताकि हमारी सीमेंट स्पेस नहीं हो और डिसोल्यूशन रेट, दे शुड नॉट बी अ डिसोल्यूशन रेट, ओके ओके। वन क्वेश्चन, डेंटिस्ट फैब्रिकेटेड अ कस्टम ट्रे फॉर अ कंप्लीट डेंचर जस्ट बिफोर द पेशेंट्स अपॉइंटमेंट, okay, he used a zinc oxide eugenol as a final impression material with free flowing consistency, but still there was distortion seen in the final cast. It may be due to, ठीक है, the first choice is the, okay, एक second, फर्स्ट इज ट्रे नॉट प्रॉपरली सीटेड इन द पेशेंट्स माउथ, व्हाई नॉट, कोई इसमें कोई रीजन तो दे नहीं रखा भाई, ठीक है। कस्टम ट्रे शुड हैव बीन मेड 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर, 4 टिश्यू स्टॉप्स वर मेड इन द कस्टम ट्रे, और एंड इसको दूर करने के लिए हाई विस्कोसिटी मटेरियल शुड हैव बीन यूज्ड। बेटा पहली चीज़ तो बिकॉज इट्स अ फाइनल इंप्रेशन मटेरियल, हाई विस्कोसिटी मटेरियल शुड नॉट बी यूज्ड। टिश्यू स्टॉप मान लो हम अगर इफ वी आर यूजिंग शेरीज डिज़ाइन, तो 4 टिश्यू स्टॉप में कोई दिक्कत नहीं है, इट विल प्रोवाइड बेटर ओरिएंटेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट इज अ वेरी वेग ऑप्शन कि भैया ट्रे प्रॉपरली सीट, कस्टम ट्रे है क्यों नहीं सीट होगी, कोई वो तो है नहीं हमारी। सेकेंड ऑप्शन कैन बी अ बेटर रीज़न। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर जो बन रहा है कि कस्टम ट्रे हम नॉर्मली 24 घंटे पहले बनाते हैं इंप्रेशन के, लिख लो ये बात, अगर क्योंकि जो भी डिस्टॉर्शन होनी है, जो भी कुछ होना है वो हो जाएगी 24 घंटे में, तो आप जब इंप्रेशन लेते हो उसके बाद कोई चेंजेस नहीं आते हो आपके इंप्रेशन में और आपकी कास्ट परफेक्ट आती है। तो हेयर द बेस्ट आंसर इज कस्टम ट्रे शुड हैव बीन मेड 24 आवर्स बिफोर द प्रोसीजर। तो ये भी बता रहा हूँ कि अगर एक और क्वेश्चन आता है दैट कस्टम ट्रे शुड बी फैब्रिकेटेड 8 आवर्स immediately before or 24 hours before the procedure, so the answer here becomes custom tray should have been made 24 hours before the procedure minimum, okay, got it, are you all there? Not able to see you, kindly write something, students, could out, okay. So condylar guidance is controlled by all except anterior guidance, bony fossa, muscle tonicity, nerve control. So condylar guidance is being controlled by bony fossa, yes, because it's a condylar guidance. हमारा we have a condyle, we have disc, condyle disc assembly, we have glenoid fossa. Muscle tonicity, yes, why not? Muscles, because of the somatognatic system, the muscles only move the joint. Neuromuscular control, yes. So here, because they are totally independent, condylar guidance and anterior guidance totally independent. How can anterior guidance can control the condylar guidance? So here the best answer is incisor guidance or anterior guidance. Okay, the answer here is anterior guidance doesn't control condylar guidance. Okay, which of the following is correct statement? कौन सी statement correct हैं A B C D में से? Okay, let us see. For ceramic veneers,
Ceramic veneers can be done in patient with bruxism. It is totally contraindicated. लिख लो, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है. Ceramic veneers should not be done in patient with bruxism or heavy bite or H2H bite cases, या जिसमें ये भी बोल सकते हैं कि question can come that if there is a very reduced overjet, there is H2H bite, so they should be contraindicated. Okay. Ceramic veneers can be done in patient with extensive restorations. Again, a contraindication because of the bonding area, because of the problems, that we should not give ceramic veneers when the teeth are heavily restored. So it's a contraindication. Okay. Ceramic veneers tissue surface should be etched with silane coupling agent. ये सही है गलत है, जल्दी बताओ. Tell me. Does the ceramic veneers tissue surface should be etched with silane coupling agent? No, it should be etched with hydrofluoric acid. देखो, there is a way to cement a ceramic veneer because there are lithium disilicate glass ceramics. So first we have to etch it. So we have a range of concentration of the hydrofluoric acid, 5 to 10%. If we are etching it with 5%, then you have to etch it for 20 seconds. If you have a concentration of 9 to 10%, then etch it for 10 seconds, right? Dry it, wash it. Then the dissolved crystals of lithium disilicate are there. You apply 37% phosphoric acid again on the tissue surface. Keep it for 30 seconds, dry it and wash it. Then apply silane coupling agent. Silane coupling agent forms the bond between the teeth and the ceramic. Okay, so it's a difunctional group. Apply it and just dry it. No need to wash it. No need to wash the silane coupling agent. It should be there. वो volatile होता है, उड़ जाता अपने आप. Just leave a layer of silane coupling agent and then you can just put the cement and can place the veneer. When you are placing the veneer, the incisal contact should be first and then the cervical contact, so that the flow of the cement should be from incisal aspect to the cervical aspect. जो भी extra उसको वो है उसको आप हटाओ. Then do tack cure for 3 to 5 seconds. Do not do starting initial. Do not cure more than 5 seconds, because if your cement sets, it will not come out, mind you. Okay, so again it's a wrong statement. Ceramic veneer should be cemented with dual cure resin cements. Again it's a wrong statement. Ceramic crown, जो हमारे all ceramic veneers, because of they are made with lithium disilicate, because they take the color of the surrounding and the underlying cement and the underlying dentine. Okay, because they should be cemented with light cure resin. So none of the statement is right. All are false. Answer is D. Okay, it's a very good question. बहुत सारी information मिलती है इसमें. तो ceramic veneer should always be luted with a visible light cure cement. Why? Because it doesn't have a chemical component of tertiary amine. Normally, why don't you cement your all ceramic veneers with self-adhesive resin and dual cure resin? Why? Because after some time, the tertiary amines, they get oxidized and get discolor, and that is the discolored color, the discoloration is seen and the treatment might fail later. So why do you want to put a cement that might discolor later? Why do you want eradicate that cement? Use a visible light cure cement. So all are false, mind you. Bone tapping is mainly done in anterior mandible, posterior maxilla, anterior maxilla, posterior mandible with D3 bone. Bone tapping is a procedure where we actually use it in the hardest bone, D1 type of bone, and D1 type of bone mainly we get in anterior mandible. Okay, bone tapping क्या होता है कि आपने last drilling तक कर ली, and then for you do not want too much torque. Okay, otherwise there will be compression necrosis. So you want your implant to go not with too much of insertion torque, maybe not beyond 50-60 Newton centimeter. So you do bone tapping. There are bone tappers where you before inserting the implant, it is just like कि आपने osteotomy पूरी करके उसके अंदर एक चूड़ियाँ घुमा दी ताकि implant can follow that path and can be placed easily. तो bone tapping हमेशा याद रखो, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है. It is done in D1 bone, anterior mandible, जहाँ पे bone बहुत dense रहती है.
It is done in dense bones. Okay, cord packer direction should be towards, when you are packing the cord packer, it should be packed towards the prepared teeth. आप towards the gingiva करके आप you will be harming the gingiva depending upon tooth position. No, dentist choice, no. So actually when you are packing, and remember that the direction of the cord packer or the angle of the cord packer should always be towards the already packed cord. Just a minute, I'll just. ओके, सो जो कॉर्ड पैकर है, देखो कॉर्ड पैकर जो जो एंगल है, जैसे मान लो आपने ऑलरेडी ये वाला पोर्शन पैक कर दिया है और ये पोर्शन आपको पैक करना है, तो जो उसका एंगल है तो द एंगल ऑफ द कॉर्ड पैकर शुड ऑलवेज बी टूवर्ड्स द ऑलरेडी कॉर्ड पैक एंड टूवर्ड्स द टीथ. रिमेंबर दिस, you cannot put it like this. The next, if you put it, it will come out. So the angle of the cord packer should be always be towards the teeth and towards the already packed cord. It is important. Okay, एक और क्वेश्चन पूछता है सिंगल कॉर्ड डबल कॉर्ड टेक्निक. तो बेटे डबल कॉर्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. डबल कॉर्ड पे दो तीन चीज़ें याद रखो कि अगर आप डबल कॉर्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हैं फॉर रिट्रैक्शन, एक तो ये याद रखो केमिको मैकेनिकल इज द बेस्ट मेथड. Chemico mechanical retraction method is the best method amongst all. ठीक है, why? Because the main idea of gingival retraction in subgingival or equigingival margin is to physically displace the gingiva first of all. तो आपने कॉर्ड पैकर कर दिया, आपने डाल दी कॉर्ड पैक करके, and you want there to be no blood, no GCF, no saliva. So you also need the saliva control. तो chemico mechanical means mechanically you are using the cord or any other material to physically displace the gingiva, and the chemical or the various agents or the various styptics, vasoconstrictors, so many things are there. Okay, epinephrine, you can use alum, you can use aluminum sulfate. There are so many things, right? So those chemicals, either they will act as astringent, they will reduce the seepage of saliva, the seepage of blood, hemostats, so that you get a clean field. Because most of your materials except polyether, they are hydrophobic in nature. They cannot go and impress upon the surface which is bathing in saliva or in GCF or in blood. So that's why it is very important that you use a chemico-mechanical method of gingival retraction, so that the impression material can go in the gingival sulcus and can do true recording of the margin. Got it? So जो हमारा cord packer है, when you are doing it, it should always be, the angle should always be towards the already packed cord, and should always be towards the teeth. Clear? Clear है? Okay, then there is another question, last question. Why I put this question is that, because sometimes these AIMS people will, I have seen 2-3 times they have put this question. Helkimo index is related to temporomandibular disc or temporomandibular joint disorder. इनका एक स्कोरिंग क्राइटेरिया है. इफ यू वांट, आई एम जस्ट पुटिंग इट ऑन दी, मैं कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. जस्ट डोंट, अगर even if you don't want to mug it up, but you should know that yes, there is something like a Helkimo index that is for temporomandibular joint. Okay, I'll just give me a second. You can just take a screenshot because I have just taken it from the okay. Just take a screenshot. Okay, so this is one of the articles. If you want, British Journal of Oral Maxillofacial Surgery 2020. So if you want, I can, this is an index. I'll just, actually I couldn't, yes, this is the index. Okay, so if you see the mandibular, this is
Helkimo clinical dysfunction index scoring criteria for your TMDs. You can see that पहला है आपका मैंडिबुलर रेंज ऑफ मोशन, कि अगर ज़ीरो ज़्यादा स्कोर होगा, जब देखो जितना ज़्यादा स्कोर होगा तो ये क्लिनिकल डिस्फंक्शन जो हमारा सम इज़ ABCDE, पहले में होती है हमारी, ए में होती है मैंडिबुलर मोबिलिटी, तो ज़ीरो में होती है नॉर्मल रेंज दैट इज़ अराउंड 40 मिलीमीटर, 1 में होती है स्लाइट कम, आपका जो ओपनिंग है कम होगी 30 to 39, और अगर 29 से कम है, 29 से कम है मैक्सिमम इंट्राइजल ओपनिंग, तो उसको स्कोर दिया जाता है 5। तो पहला जो मैंडिबुलर मोबिलिटी का जो हमारा स्कोर है 015। दूसरा आता है हमारा इम्पेयर TMJ फंक्शन, 0 है कि हमारी स्मूथ मूवमेंट हो रही है विदाउट एनी साउंड्स, ओके, एंड द डिविएशन, आप मतलब ओपन कर रहे हो क्लोज कर रहे हो, उसमें डिविएशन लेस देन 2 mm है, तो दैट कैन बी टेकन एज 0। अगर 1 तब दिया जाता है जब डिविएशन 2 से ज़्यादा होगी ओपन और क्लोजिंग में, और एक ही दोनों में से एक जॉइंट में आवाज़ आ रही है, क्लिक आ रही है। 5 दिया जाता है कि जब लॉक हो जाता है या लग्जेशन हो जाती है जॉ की। तो सेकंड है इम्पेयर TMJ फंक्शन दैट इज 015। थर्ड है मसल पेन, 0 में देयर इज नो मसल टेंडरनेस। अगर 1 से 3 पैल्पेबल साइट्स में अगर हमारी मैस्टिकेटरी मसल की टेंडरनेस है तो उसको 1 स्कोर दिया जाता है। मोर देन 4 पैल्पेबल साइट्स हैं तो उनको हम 5 स्कोर देते हैं। देन देयर इज TMJ पेन, पैल्पेशन पे TMJ एरिया पे कोई पेन नहीं है, कोई टेंडरनेस नहीं है। बेटा जो तीसरा वाला था इट इज़ जो हमारा जो सिम्टम था इट इज़ मेनली रिलेटेड टू मसल पेन। अब मैं बता रहा हूँ TMJ पेन, मतलब हमारा TMJ के पेन में एरिया है, तो वही चीज़ है कि अगर हमारा कोई टेंडरनेस नहीं है तो 0 स्कोर। देखो इसका मिल स्केयरिंग है 015। 0 मीन्स एब्सोल्युटली फाइन, 1 मिडिल में आ जाएगा, 5 आएगा बहुत बुरा, ठीक है। तो जो TMJ पेन अगर टेंडरनेस हमारा पोस्टीरियरली पैल्पेशन पोस्टीरियरली है तो उसमें 0-1 है, 5 में लैटरली है। देन पेन ऑन मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल, ठीक, अगर पेन ऑन मूवमेंट है थोड़ा बहुत 0 है, पेन ऑन 1 मूवमेंट है 1 दे दिया, और 5 दे दिया पेन ऑन मोर देन 2 मूवमेंट्स, मतलब प्रोट्रूजन पे राइट लैटरल लेफ्ट लैटरल। तो इनका स्कोर जितना ज़्यादा आता है उतना ही हमारा क्लिनिकल डिस्फंक्शन इंडेक्स ज़्यादा है। आई होप इट इज़ क्लियर। बेटा ये देख लेना, ठीक है। हेल्कीमो ये आपका अवेलेबल भी है, मैंने भी, अगर आपका इसको आप स्क्रीनशॉट लेके यू कैन जस्ट मैक्सिमाइज एंड कैन अगेन। तो पहला था मैंडिबुलर मोबिलिटी, दूसरा था इम्पेयर TMJ फंक्शन, तीसरा था मसल पेन, चौथा था TMJ पेन, पांचवा था हमारा पेन ऑन मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल। 015 है, ये ध्यान रखना, 0 मतलब नॉर्मल, दूसरा मतलब बीच में, और चौथा 5 होगा जो बहुत बुरा है। जितना ज़्यादा हेल्कीमो इंडेक्स का स्कोर होगा उतना ही क्लिनिकल डिस्फंक्शन ज़्यादा है। क्लियर है? क्लियर है? तो हेल्कीमो इंडेक्स इज फॉर TMJ डिसऑर्डर्स, राइट? ओके, तो आई होप things are clear in prosthetics. Now let us start with the dental material part. I hope any doubts in prosthetics? Okay, let us start with the dental material part. The first question, impression plaster containing potato starch is called, very easy, it is called soluble plaster. Why we need to add potato starch in the impression plaster? Why? Because देखो आपने impression लिया, ठीक है, now you have to use a separating media and pour the model again with the gypsum. Now it is very difficult to separate gypsum with the gypsum. तो आपने क्या किया, आपने impression लिया, आपके अगर impression में potato starch है तो आप क्या करते हो, when the cast is set, so what you do is you just pour it, when the cast is set you just put it in hot water. So when you put it in hot water, the starch will swell up and it will disintegrate by itself, so leading to easy separation of the cast from the impression. Okay, so answer here is B, soluble plaster. Okay, some questions
the water absorption value for PMMA is, write down, it is 0.67 milligram per centimeter square. ये रटने वाली वैल्यू है. Water absorption value for polymethyl methacrylate is 0.67 milligram per centimeter square. देखो वाटर absorption हमारा और लीनियर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे वाटर absorption, जब आपने डेंचर बनाया, पेशेंट इज़ यूजिंग द डेंचर एंड द वाटर absorption इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. तो उसमें जो लीनियर वेरिएशन आते हैं तो मतलब वो पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज से हमारे, जैसे जो भी पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज हुई होगी और वाटर absorption से, वो हमारे कैंसिल आउट हो जाता है. जस्ट अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कितना रहता है, तो आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इट इज 0.67 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर इज डी. थर्ड, अमाउंट ऑफ जिप्सम प्रेजेंट इन डेंटल प्लास्टर, it is more than 90%, it is about 60%, about 50%, less than 40%. So write down the amount of gypsum present in dental plaster is more than 90%. It is more than 90%. तो अगर आप देखो, if you see the various, the composition of the gypsum, ठीक है. तो अगर मैं देखूँ बेटा, इसमें बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिप्सम में. सेटिंग एक्सपेंशन, हाइग्रोस्कोपिक सेटिंग एक्सपेंशन, वाटर पाउडर रेशियो. वाटर पाउडर रेशियो टाइप 1, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट आउट, इट इज़ 0.15. जो सेटिंग एक्सपेंशन 0.15 फॉर टाइप 1, टाइप 2 में 0.30, टाइप 3 में सेटिंग एक्सपेंशन होती है हमारा 0.20, टाइप 4 में इट इज़ 0.10, टाइप 5 में 0.30. ओके. तो अब जो एक्सीलेटर्स क्या होते हैं जिप्सम में, इन जिप्सम दी एक्सीलेटर आर पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ओके, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, बट एसीटेट, ABC याद रखो रिटार्डर्स में, एसीटेट्स, बोरेट्स एंड सिट्रेट्स. दीज आर द रिटार्डर्स इन जिप्सम. द बेस्ट रिटार्डर इज योर बोरेक्स because it forms the coating of calcium on the calcium hemihydrate and forms calcium borate. ओके. देखो टेम्परेचर का सेटिंग टाइम पे नॉर्मली बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. आफ्टर 100 डिग्री के बाद देयर इज नो रिएक्शन. राइट, गॉट इट. तो हेयर द आंसर इज ए, दैट इज योर. ठीक है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, जो लो कंसंट्रेशन पे दे एक्ट एज एक्सीलरेटर्स, बट दे कैन पॉइजन द न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन एंड बिकम रिटार्डर्स. ठीक है. ठीक है. अगर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, पाउडर जिप्सम एडेड टू हेमीहाइड्रेट, इट एक्सक्रेट द सेटिंग रिएक्शन बाय इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर क्रिस्टलाइजेशन. यू हैव टू सी दी, you have to read the reason, that is important. Read the reason. Got it? समझ में आया है? Okay. For each 1% increase in the weight of the denture by water absorption, the denture expands linearly by, write down, it is 0.2%. It is 0.2%. लिख लो ये वैल्यू, पूछ सकते हैं. ओके, यू जस्ट राइट डाउन. देखो वो वाटर अब्सॉर्ब तो करेगा, लेकिन यू शुड नो दैट ठीक है. तो for every 1% increase in the weight of the denture by water absorption, the denture expand linearly by 0.2%. That is clinically acceptable, no problems. बेटा ये डायरेक्ट पिक है, क्योंकि मैं क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि आप नॉर्मली भूल जाते हो.
ठीक है, लास्ट मौके पे आपको याद रहे, वाटर ऑफ रिएक्शन needed to react completely with 100 gram of calcium sulfate hemihydrate to convert into 16 gram of calcium dihydrate। बेटा 18.6 ml की वैल्यू याद रखना, इसमें कुछ भी वो नहीं है इसमें साइंस, ठीक है। कितना 100 ग्राम कैल्शियम को कन्वर्ट करने में आपको लगेगा कैल्शियम डाइहाइड्रेट, 18.6 ml ऑफ वाटर ऑफ रिएक्शन इज नीडेड। तो एक्चुअल जो वाटर ऑफ रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन के लिए चाहिए है ना, और जो हमारा जो एक्चुअल वाटर जो हम मिक्स करते हैं, तो याद रखना कि जो केमिकल रिएक्शन के लिए लगता है वो कम लगता है, तो इसलिए देयर इज समथिंग एज फ्री वाटर और एक्स्ट्रा वाटर तो हमेशा रहता है सरफेस पे। तो यहाँ पे आंसर इज 18.6 ml प्लीज, राइट, 18.6 ml। नाउ व्हेन द पॉलीमर एंड द मोनोमर आर मिक्स्ड एट 1:1 रेशियो व्हाट हैपन्स। बेटा हमें पता है कि एट 1:, हमारा जो बाय वॉल्यूम 1:3 इज द बेस्ट बाय वॉल्यूम रहता है पॉलीमर टू मोनोमर रेशियो, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको पॉलीमर को हमने उतना ही रखा मान लो फॉर एग्जांपल, और मोनोमर को हमने बढ़ा दिया, तो 50-50% में जब करोगे तो क्या होगा, मोनोमर ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा उड़ेगा, एंड दे विल बी मैक्सिमम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, दे विल बी मैक्सिमम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज। पोरोसिटी भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बट देन द बेस्ट है हेयर, द बेस्ट आंसर इज योर मैक्सिमम पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज, ठीक है, ठीक है। 3:1 बाय वेट, 3:1 बाय वेट हमारा पॉलीमर टू मोनोमर रह सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हमारा क्रॉस लिंकिंग एजेंट हीट क्योर में कौन सा होता है। नाउ टेल मी, बताइए, व्हाट इज द क्रॉस लिंकिंग एजेंट इन द हीट क्योर, जल्दी बताओ, लेट मी सी हाउ मच यू नो अबाउट डीएम, बताइए जल्दी, व्हाट इज द क्रॉस लिंकिंग एजेंट, व्हाट इज द क्रॉस लिंकिंग एजेंट दैट इज यूज्ड in a heat cure resin first? Okay, so okay, बेटे आकांक्ष हेल्कीमो इंडेक्स, बेटा हेल्कीमो इंडेक्स बेसिकली साइंटिस्ट के नाम पे था। आई एम जस्ट सीइंग द क्वेश्चंस, आई जस्ट अ मिनट, okay, I am just now able to see the chat। बेटा देखो सिलिकेट आएगा तो देखो इसमें ना अंजलि ने क्वेश्चन पूछा है डीएम का, कोएफिशिएंट एक्सपेंशन इज क्लोजेस्ट टू। बेटा देखो सिलिकेट सीमेंट, यस इट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट, बट नाउ इट इज नॉट यूज्ड, ओके। अगर सिलिकेट होगा तो आंसर सिलिकेट करना, लेकिन अगर नॉर्मली यू विल सी दैट नाउ इट इज सिलिकेट नॉट यूज, तो बेस्ट आंसर विल बी टाइप 2 GIC। और शालिनी बेटे देखो विजुअल्स मेरे जितने भी सेशंस हैं डैम्स के सब में दे दिए हैं मैंने, ओके। मैं दोबारा सेम चीज़ दिखाऊं उसको कोई फ़ायदा नहीं है शालिनी, है ना। हमारी जो बुकलेट है प्लस जो मेरे क्वेश्चन है टॉकेटिव सीरीज़ है, आपको एक बार उसमें सारे विजुअल्स देख लीजिए, और जितने मैंने यूट्यूब सेशन लिए हैं इससे पहले बेटा सारे विजुअल्स हैं बच्चे। कैलकुलेशन नहीं आएगा बेटा, आपने कुछ नहीं करना। देन निकेश इज आस्किंग सर द टॉर्क वैल्यू इन इम्प्लांट आइडियली, सी द टॉर्क वैल्यू इन इम्प्लांट आइडियली इट शुड बी अराउंड 35 to 40 न्यूटन सेंटीमीटर्स, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बोन बहुत हार्ड है तो वो हमारा इवन मैंडिबल में रिकमेंडेड है 50 से 60 तक लास्ट है, उसके ऊपर जाएगा तो कंप्रेशन नेक्रोसिस हो सकती है, ओके। एंड मिनिमम इस कम से कम 15 से 20 रहनी चाहिए, ठीक है। 15 से 20 से कम नहीं और 50 से 60 से ज़्यादा नहीं, गॉट इट। आइडियली 35 to 40 न्यूटन सेंटीमीटर, ओके। आकांक्षा महाजन इज आस्किंग what are the chemicals used in gingival retraction and the percentages, okay।
So you want me to tell you the percentage? Okay, Helkimo index I have already told you. Okay, just a minute. I'll just tell you the. Okay, so I'll just. Okay, so you can write the composition. Okay, so epinephrine is write the composition if you want. I'll just write down. Epinephrine 0.1%, racemic epinephrine is 8%, epinephrine is 0.1%, racemic epinephrine is 8%. ठीक है, alum is most safest, that comes in 2 percentages, 10% and 100%, mainly 100% ज़्यादा यूज होती है. ठीक है, then aluminium chloride, it comes in 5 and 25%, aluminium chloride 5 and 25%. ठीक है, then tannic acid in 20 and 100%, tannic acid in 20 and 100%, negatol in 10 and 100%, zinc chloride now not used because of its caustic effect, 8%, and even in 40% आता है, लेकिन 8% आप मेनली रखो. ठीक है, देन फेरिक सल्फेट नॉर्मली ये हमारी 15 से 20% में आता है नॉर्मली. फेरिक सल्फेट फॉर डेंटो इन्फ्यूजर टेक्निक जो होती है, इट इज मेनली यूज्ड. ठीक है, क्वेश्चन आता है मॉन्सल सॉल्यूशन क्या होता है. मॉन्सल सॉल्यूशन, तो राइट डाउन फेरिक सब सल्फेट, फेरिक सल्फेट या फेरिक सब सल्फेट भी पूछ सकते हैं. फेरिक सब सल्फेट इज दी मॉन्सल सॉल्यूशन, मॉन्सेल MONSEL, मॉन्सल सॉल्यूशन. तो आई होप इट इज क्लियर नाउ. लिख लिया आपने? यस, क्लियर है बेटा? बेटा मस्कुलेचर अफेक्टिंग डेंचर मूवमेंट, सी बेटा ये तो बड़ा क्लियर है बेटा. जो पहले ये बताओ, विशाल, अंजलि, आकांक्षा, केमिकल समझ में आ गए बेटा? आकांक्षा महाजन, हेल्किमो इंडेक्स मैंने आपको बता दिया है बेटा, ये आपको पढ़ना पड़ेगा. हेल्किमो इंडेक्स मीन्स इट इज एन इंडेक्स यूज टू सी दी rate the how much amount of problem is there in the temporomandibular joint depending upon the various parameters. There are 5 I have told you. Okay, musculature affecting denture movement, somebody is asking. तो मस्कुलेचर अफेक्टिंग डेंचर मूवमेंट बेटा देखो, मस्कुलेचर का तो अब ये तो पूरा लैंडमार्क्स आ गए. दिस इज आई कैन ओनली टेल यू कि मैक्सिलरी फ्रीनम में कोई मसल मूवमेंट नहीं है. ठीक है, सॉरी, मैक्सिलरी फ्रीनम में देर इज ऑर्बिकुलरिस ऑरिस,
Then when we talk about maxillary buccal frenum, there are three muscles: levator anguli oris, orbicularis oris, and buccinator. थ्री मसल्स, लेवर ट्रायंगुलर और इसको हम कैनानस भी बोलते हैं. देन कम ऑन टू द बैक. ओके, the distobuccal area, it may be affected by the contraction of masseter, contraction of buccinator, and by the you know the है ना, आप कुछ वो पूछ रहे थे. ओके, PPS, PPS I've already taken so much in my classes. I won't repeat PPS. In mandible, yes. In mandible, we can talk about muscles, for example, in the anterior area. Remember that there is orbicularis oris and hypermentalis. अगर है तो यहाँ पे जो सबसे जो एंटीरियर लेबियल फ्लैंज होता है उसकी थिकनेस सबसे कम होनी चाहिए. एक तो ये याद रखिए, ठीक है. दूसरा, बक्कल फ्रीनम इन मैंडिबल, इट इज ट्रायंगुलरिस मसल और डिप्रेसर एंगुलर ओरिस. Then when we go in the distobuccal aspect, there is buccinator, and buccinator is a parallel muscle to the denture border. So it will not dislodge the denture border because the muscle fibers are parallel to the denture border. In most distal aspect, the masseter muscle is below and deep to the buccinator. So a buccinator in itself, it is not a very strong muscle. तो वो अगर तो but below it is a masseter on the distal aspect of the mandibular denture. तो वो क्या करती है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, it forms a bulge. तो it is by the action of masseter over buccinator, it forms a masseteric bulge, जो कि as a masseteric notch रिकॉर्ड होता है हमारे impression पे. Alveolingual sulcus in the anterior mylohyoid muscle, it has a very indirect effect. The middle portion, it is the mylohyoid muscle main effect. The most distal portion, there are 3 to 4 muscle. For example, superior constrictor का सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है. Then palatal-glossus superior constrictor is placed posterolaterally, ठीक है. Posteromedially is palatal-glossus, and superior constrictor के पीछे there is medial pterygoid. तो मेन अफेक्ट डिस्टोलिंगुअल रीजन में आपका सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर का आता है. तो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर इफ द पेशेंट इज गिवन अ न्यूली मेड डेंचर एंड पेशेंट इज हैविंग अ सोर थ्रोट, it is because of the overextended distolingual border brushing the superior constrictor muscle, so you need to trim that border. Clear hai Vishal? How to know whether the patient is bited more forcefully while trying or mistake in recording the CR? बेटा देखो, अगर आपका पेशेंट, विशाल, how to know whether the patient is, देखो, if you want to know then ड्यूरिंग दी, देखो आपने वर्टिकल ले रखा है ना, अगर पेशेंट ने जोर से बाइट कर दिया तो डेफिनेटली आपकी रिम डिस्टॉर्ट हो जाएगी. तो आपका वर्टिकल, यू अगेन चेक वीडीआर वीडियो. अगर डिफरेंस बढ़ गया वीडीआर वीडियो को, इसका मतलब पेशेंट ने बाइट रिकॉर्ड कर चेंज कर दिया. या इवन फॉर दैट मैटर, जो आपका व्हेन यू आर अटैचिंग द ट्रेसर्स फॉर सेंट्रिक रिकॉर्डिंग, यू रिड्यूस द लोअर रिम बाय, तो देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ 3 mm. तो अगर पेशेंट ने जोर से बाइट कर लिया इवन वाइल अटैचिंग दी ट्रेसर्स, तो आप देखोगे वो जो डिस्टेंस कम हो जाएगा 3 mm से. गॉट इट विशाल? एनी मोर डाउट्स? कैन आई मूव अहेड विद DM? ओके विशाल, क्लियर है बेटा? एनी अदर क्वेश्चंस इन DM so that I can go ahead with DM? All of the following are different between the how. हो गया बेटा विशाल? क्लियर है? आई होप इट इज क्लियर. Any more doubts in prostho? Okay, so is it the alpha and beta form, crystal size, surface area, degree of lattice imperfection? बेटा केमिकल कॉम्पोजिशन अल्फा बीटा की तो सेम ही रहेगी, दोनों ही सेम फॉर्म में. अगर आप ओपन एटमॉस्फेयर में हीट करते हो 110 से 120 डिग्री पे, तो अगर ओपन एटमॉस्फेयर में हीट करते हो, ड्राई कैल्सिनेशन करते हो, तो बीटा फॉर्म बनती है. इफ यू आर गिविंग इन अ स्टीम ऑटोक्लेव इन अ क्लोज क्लेन, देन
यू फॉर्म, अल्फा फॉर्म, बीटा फॉर्म में इट इज़ मोर ऑफ मोर ऑफ इरेगुलर स्ट्रक्चर्स, तो बीटा फॉर्म में ज़्यादा स्पॉन्जिनेस होती है. यू गेट अ मोर डेंस पैक स्ट्रक्चर्स इन अल्फा फॉर्म, ठीक है, मोर रेगुलर स्ट्रक्चर्स, तो वाटर पाउडर रेशियो उसमें कम पोर्स होते हैं. इट इज़ मोर डेंसर अल्फा फॉर्म. हेमीहाइड्रेट जितने भी इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें अल्फा फॉर्म यूज़ होती है. ये भी एक और क्वेश्चन आता है कि बिकॉज इट इज़ हैविंग मोर स्ट्रेंथ, इट इज़ मोर पैक्ड, सो इन्वेस्टमेंट में अल्फा फॉर्म यूज़ होता है. बीटा फॉर्म नॉर्मली स्पंजी होता है, तो उसका वाटर पाउडर रेशियो भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अल्फा फॉर्म. अल्फा फॉर्म जो हमारा डेंटल स्टोन या डाई स्टोन है, या डाई स्टोन हाई स्ट्रेंथ हाई एक्सपेंशन है, वेयर you use more of alpha form for dyes. Okay, it is more packed, needle prismatic crystals. Okay, when mixing water with gypsum, which of the following should be added first? Definitely, क्या पानी पहले लिया जाता है या जिप्सम प्रोडक्ट पहले लिया जाता है, या दोनों को साइमल्टेनियसली ऐड किया जाता है, या इट डजंट मेक एनी डिफरेंस? सो water is always taken first. We need each and every particle of the gypsum to be completely wet. Okay, so water is always taken first. Water is always taken first. Remember this. ठीक है. Next question is stainless steel having least corrosion resistance. It is ferritic. Is it austenitic? Is it martensitic? Or none? Okay. So the best answer here is martensitic steel. Martensitic steel. Okay. But you have already read about this. So we know that the ferritic steel contains more iron. Okay, so we know that the austenitic steel, they are basically 18-8 steels. That means it contains 18% chromium and 5% and 8% nickel. 18-8 steel का मतलब है 18% chromium and 8% nickel with 0.15% carbon in austenitic steel. So ये जो, because it contains a lot of chromium, so that is why it is the most corrosion resistant, but least is martensitic steel. Okay, martensitic steel is mainly used for your surgical instruments. Okay, very sharp, very fine instruments, surgical instrument, in ophthalmic, in dentistry, but it is least corrosion resistance. Martensitic steel, it is least corrosion resistance. Okay, hardness test for cobalt chromium is checked by, so the hardness test here that is checked by is your Vickers test. Write down, it is Vickers test. बेटा बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जब आप भूल जाते हो ये टेस्ट. ठीक है, जस्ट आई विल ट्राई टू जस्ट इवेल्युएट द टेस्ट्स. ठीक है, वी नो दैट द ब्रिनल एंड द रॉकवेल टेस्ट आर दी, देखो बी आर दी मैक्रो टेस्ट, मैक्रो हार्डनेस टेस्ट. क्यों? क्योंकि उसमें the size of the needle is kept more and also the force is kept more than around 9.8 से ज़्यादा फोर्स की जाती है. ठीक है, नूप एंड विकर्स आर माइक्रो हार्डनेस टेस्ट, जहाँ पे 9.8 न्यूटन से कम फोर्स यूज़ की जाती है. तो अगेन आई एम सेइंग ब्रिनल एंड रॉकवेल, बी आर मैक्रो एंड के वी माइक्रो. रिमेंबर दिस. शोर एंड बारकोल हमारे नॉर्मली टेस्ट जो होते हैं, those are mainly used for the rubbers and the plastic. ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो नूप हार्डनेस टेस्ट है वो इट इज़ मेनली यूज टू ऑब्टेन दी वैल्यूज फॉर एक्सीडिंगली हार्ड एंड एक्सीडिंगली, ठीक है, सॉफ्ट मटेरियल्स. एंड रिमेंबर नूप, राइट डाउन द नूप हार्डनेस टेस्ट, राइट डाउन नूप हार्डनेस टेस्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल.
Knoop hardness test KHN is independent of the ductility of the material. ठीक है. Vickers is mainly applied for your gold and cobalt, chromium and the nickel alloys to know the hardness, and it may also be used, Vickers may also be used, write down, for determining the hardness of the brittle materials. Got it? ठीक है. Which of the following is incorrect for alginate setting time? Okay. Remove the tray after 2 to 3 mm of 2 to 3 millimeters 2 to 3 minutes of gelation. Yes, gelation के कुछ टाइम के बाद निकालनी चाहिए जब वो पूरा सेट हो जाए. Minimum 3 mm of space is required between the tissues and the tray. Yes, it is a right statement. इतना थोड़ी बहुत space तो चाहिए. Pouring can be delayed up to 3 hours in 100% humidity. No, it's a wrong statement because of imbibition, because of the problems in distortion, because it can imbibe, it can lose water, so it cannot be delayed. It has to be within 8 minutes, or the answer is as fast as possible. And is setting can be altered by increasing the temperature? Yes, it can be increased. ठीक है, तो best answer is C. Then 12th question, garnet is made up of. Write down बेटा, ये question पूछा जा सकता है. Garnet, again, there are so many finishing and polishing agent, emery, garnet, kesel good, chalk, quartz, वो सारे आपको देखने पड़ेंगे. The answer here is it is silicate, aluminium silicate, cobalt silicate, iron silicate. It is silicates of the metals, aluminium, cobalt, iron, magnesium, manganese. It is basically manganese. ठीक है, तो basically silicates of such is garnet. ठीक है. Then another question, creep is your time dependent plastic deformation. We know that there are two types of creep, static creep and dynamic creep. Static creep is when there is a constant force, right? Okay, when there is a periodic cycle, for example masticatory forces, then the answer then it may be a dynamic creep. The value should always be less than, according to ADA specification number 1, the creep rate should always be less than 3%. लिख लो, according to ADA specification number, the creep should always be below 3%. 3%. Inhibitor is added in the monomer of self cure acrylic resin. बेटा inhibitor is camphoroquinone हम डालते हैं, लिक्विड में डालते हैं ताकि वो प्री पॉलीमराइज ना हो. और जितने ऑप्शंस हैं, इंक्रीज द टाइम ऑफ द डो फॉर्मिंग स्टेज गलत है, डिक्रीज द श्रिंकेज नो, प्रिवेंट द पोरोसिटी नो. इट इज़ जस्ट टू प्रोलॉन्ग द शेल्फ लाइफ ऑफ द रेजिन, ताकि रखा रहे, और आपने उसको लगा दिया ताकि इट शुड नॉट सेट प्रीमेच्योरली. तो इनहिबिटर camphoroquinone is added to the liquid portion so that it should not set in the bottle itself. Clear है. Then last question, increase in the number of flutes. देखो कार्बाइड बर हो, कोई बर हो, the lesser the number of flutes, it will work more aggressively, it will remove more material. ठीक है, जितने नंबर ऑफ फ्लूट्स बढ़ेंगे इसका मतलब वो बाइट उतना ही कम करेगा सरफेस पे. इट विल प्रोड्यूस अ मच मोर स्मूदर फिनिश. और एक चीज़ और एक और क्वेश्चन आता है इसमें कि दी पॉलिश्ड लेयर आफ्टर यू हैव पॉलिश्ड इट सो वेल, दैट इज नोन एज बिल्बीज लेयर. बिल्बीज लेयर, क्लियर है? बिल्बीज लेयर, गॉट इट? Preferred material for repair of denture, is it heat cure activated resin, is it chemically activated resin, light activated resin, or it is a vinyl resin? बेटा देखो, for all practical purposes when you repair a denture you can use your cold cure. It is easier,
आप तुरंत मिल जाता है, आपको कोई बहुत ज़्यादा लैब आपको कास्ट तो बनानी पड़ती है, यू हैव टू मेक अ कास्ट, बट देन येस इट कैन बी डन ईजीली, और ये अच्छा काम भी करता है, राइट। देन बेस्ट वे टू रिमूव द हाइड्रोकोलॉइड impression by slight rocking of the impression to disengage in the undercut, by wetting the periphery with the moist cotton to break the peripheral seal of the impression, by sudden jerking of the impression to prevent tearing, and supporting the impression along the tray to prevent its separation from the tray। बेटा इसमें अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी हम इलास्टोमेरिक इंप्रेशंस को रिमूव करते हैं, चाहे वो अगार हो चाहे वो एल्जिनेट हो, वी ऑलवेज रिमूव इट विद अ स्नैप, विद अ जर्क, so as to prevent permanent deformation, remember this, so as to prevent permanent deformation, okay। तो here the answer is C, you just give a sudden jerk so that it does not tear। gas entrapment within the mold can lead to, बेटा देखो पिन होल कर सकता है माइक्रोपोरोसिटी, बट द बेस्ट आंसर इज बैक प्रेशर पोरोसिटी। कैसे होता है, क्या है कि देखो जब आपने व्हेन यू हैव डन दी, देखो आपको फॉर एग्जांपल जस्ट okay, just teach you, see the thing is when so if you see that when you have this is the casting ring, ठीक है, ये नीचे क्रूसिबल मान लो ये क्रूसिबल बेस फॉर्मर है, देन दिस इज द स्क्रू रिजर्वायर एंड यू हैव पुट द वैक्स पैटर्न, यहाँ आपकी इन्वेस्टमेंट मटेरियल है, राइट। एक तो इन्वेस्टमेंट जो आपकी ये जो है वैक्स पैटर्न, और इसमें बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं रहना चाहिए, 6 mm से ऊपर नहीं रहना चाहिए, 1/4 इंच से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। वाई, बिकॉज इफ देयर इज लॉट ऑफ डेंस इन्वेस्टमेंट या ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो होता क्या है कि जब भी मान लो बर्नआउट होता है और आपका जब मटेरियल अंदर जाता है, आपके कास्टिंग जाती है, मोल्टन मेटल जाता है, तो बहुत सारी गैसेस प्रोड्यूस होती है, तो वो गैसेस को एस्केप करने के लिए वो चाहिए। अगर मान लो गैसेज एस्केप नहीं हुई तो इट विल क्रिएट अ बैक प्रेशर टू द फ्लो ऑफ द मेटल। तो बेस्ट आंसर हियर इज इट कॉजेज योर बैक प्रेशर पोरोसिटी। अगर एंट्रैप्ड गैसेज रह गई तो बैक प्रेशर पोरोसिटी। एक और क्वेश्चन आता है, ब्लैक कास्टिंग्स में भी ड्यू टू इम्प्रॉपर बर्नआउट। और हमारा जिप्सम बॉडी इन्वेस्टमेंट टूटता क्यों है? अगर हम 700 डिग्री से ज़्यादा हीट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस टेम्परेचर कैन लीड टू बैक प्रेशर पोरोसिटी। शेप ऑफ द इंडेंटर इन नूप हार्डनेस टेस्ट। बेटा आई जस्ट टेल यू दी कि हमारे कौन से इंडेंटर्स होते हैं, ठीक है। द शेप ऑफ द इंडेंटर इन नूप हार्डनेस टेस्ट इज योर मेनली रोम्बॉइड शेप। देखो अगर मैं शेप की बात करूं तो जस्ट क्विकली इफ वी सी दिस, जो हमारे देखो अगर मैं बात करूं हमारा नूप हार्डनेस में, if I'm talking about the noob hardness, तो it is basically it is a rhomboid shape, right? ठीक है, तो noob hardness से मतलब rhomboid shape, तो मेनली rhomboid का क्या शेप होता है? If you see that rhomboid shape में हम basically we can say this is diamond shape basically। इसकी एक लॉन्ग डायगोनल होगा, एक शॉर्ट डायगोनल होगा, तो हम इसमें लॉन्ग डायगोनल को देखते हैं, ठीक है। विकर्स में बेसिकली अ डायमंड ऑफ पिरामिड शेप इज यूज्ड, ठीक है, ठीक है। तो डायगोनल ये बेसिकली इसकी लेंथ डायमंड पिरामिड इज यूज्ड, और उनके जो हमारे जो डायगोनल्स होते हैं वो बिकॉज स्क्वायर शेप्ड है तो सेम रहते हैं, तो इसको विकर्स को हम डायमंड पिरामिड टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा नूप है, नूप हार्डनेस टेस्ट, जहाँ पे रोम्बॉइड होता है, स्क्वायर विद पिरामिडल बेस, ठीक है, डायगोनल सेम रहेंगे, विकर्स, ठीक है। रॉकवेल में कोनिकल डायमंड यूज़ किया जाता है, तो उसमें डेप्थ होती है कोनिकल, ठीक है, तो उसमें डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज सीन,
ठीक है। ब्रिनल्स में स्टील बॉल देखी जाती है और उसका फिर मैक्सिमम डायमीटर देखा जाता है कितना अंदर गया है। आई होप इट इज क्लियर। द डायमीटर ऑफ द इंडेंटेशन, तो ये है ब्रिनल्स। ब्रिनल, बी फॉर ब्रिनल, बी फॉर बॉल, ठीक है। रॉकवेल में जैसे बताया, इट इज द डेप्थ ऑफ इंडेंटेशन ऑफ द कोनिकल पार्ट, इट इज सीन। विकर्स डायमंड पिरामिड, नूप रोम्बॉइड। आई होप इट इज क्लियर। बेटा पूछ सकते हैं, बहुत बार पूछते हैं, फंस जाओगे नहीं याद करोगे तो। विच कॉम्पोनेंट ऑफ फ्लक्स हेल्प इन द रिमूवल ऑफ द पैसिवेटिंग लेयर। बेटा देखो, जो हमारे बोरेट्स होते हैं, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड लेयर, दैट प्रिवेंशन है, ठीक है। तीन चीजें होती हैं, आइदर यू प्रिवेंट इट और यू रिड्यूस इट और यू डिजोल्व इट। डिजोल्व जो करते हैं मेनली हमारे फ्लोराइड फ्लक्स होते हैं, वो डिजोल्व करते हैं। मेनली हमारे बेस मेटल या निकल क्रोमियम, कोबाल्ट क्रोमियम, वो यूज होते हैं हमारे, ठीक है। गोल्ड हमारा नॉर्मली बोरिक एसिड या बोरेट्स हमारे यूज हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन है, इट इज नॉट प्रिवेंटिंग, इट इज रिमूविंग और इट इज डिजोल्विंग। तो हेयर द बेस्ट आंसर इज योर फ्लोराइड फ्लक्स that is used for your removal of the flux, ठीक है। I just 2-3 minutes I'll take before I end this session. I've completed all the questions. Any doubts in prosthetic and DM? I'm waiting. बेटा देखो, 3-4 चीजें बता रहा हूं कि don't worry about the pattern of the test. It is, I personally say that it is for your betterment, okay. Whatever is the last pattern that is given, it is good for you. Remember this. एक चीज से वन पार्ट हो जाए पूरा आराम से, उसके बाद भाड़ में जाओ ना, एक पार्ट करो, बेस्ट तरीके से करो, देन यू गो हेड विद योर सेकेंड पार्ट, राइट। पहली चीज। दूसरी चीज, नो स्ट्रेस ऑफ एनी काइंड यू शुड टेक। यू आर वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन्ड स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस हाई रखो, ओवर मार्किंग में या फिर जो रिपीट क्वेश्चन गलत नहीं करने। जो हमारे नोट्स हैं वो एक बार ज़रूर रीड करके जाना, उनके बेसिस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, राइट। वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन मैंने जानबूझ के डाले हैं ताकि आपके दिमाग से वो वैल्यूज़ चली जाएं, वैल्यूज़ वाले क्वेश्चन बेटा। और जो देखो, आई कुड हैव पुट ऑल दी पिक्चर वाले क्वेश्चन, बट आई हैव ऑलरेडी टेकन सो मेनी सेशंस ऑफ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस. I don't think you can go back to my YouTube lectures. I have always paid emphasis upon these picture based questions. See the booklet that we have given, take all the talkative series, just go and see, एक बारी अपने आंखों के नीचे निकाल दो, and I hope you people come out with flying colors. Don't worry, you are one of the bestest students. Keep working hard, and whatever can be done from my side, we are all helping you, we are always with you, okay. Have a good sleep before the test, okay. Don't worry, do your best, okay. जितनी जान है उतनी लगा दो बेटा इस टाइम पे, तो don't waste any second, okay. So my all the best for all of you, okay. आप सब ने इतनी मेहनत करी है, तो मेरी दुआएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों के साथ रहेगा, और आप you all should come out with flying colors. It is my you are always in my prayers. You are excellent students, you are true Demsonians. Do well, do excellently well, and make your teachers and make your parents and make yourself proud. We'll meet somewhere someday. Success आपके कदम चूमेगी बेटा, ठीक है, और लेकिन हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटना है. क्लियर विशाल, अंजलि डेंटल हब पॉलीक्लिनिक, आकांक्षा, निकेश, नेहा शर्मा, शालिनी आनंद, फील दी डेंटिस्ट्री, अंजलि चौहान. आई होप my all best wishes with you. Do well in your lives. Thank you so much. We'll meet again, okay. Thank you.